نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب. اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور تمام سیگمنٹس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہی الحمدللہ گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تجوید کے قواعد بھی سمجھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، قرآنی معلومات بھی شیئر کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ انٹرسٹنگ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. آج جو سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ وقت ہی بتائے گا جب وہ سیگمنٹ کا مرحلہ آئے گا انشاءاللہ. تو اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے. پہلے سیگمنٹ میں بچوں ہم کیا کرتے ہیں، حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. تلاوت کے لیے کڈز مدنی چینل کے کوئی قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج قاری عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں گے کہ ہمیں یہ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت سنائیں گے. ہم توجہ سے سنیں گے، ان کا پڑھنا ہمارا سننا انشاءاللہ ثواب کا کام ہوگا، ہمیں ثواب بھی عطا ہوگا. پھر ہم کیا کریں گے، ہم قاری صاحب کی تلاوت کردہ آیات ہی میں سے کچھ آیات کو لے کر ہم تجوید کے قواعد سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مدنی قاعدے میں اور تجوید کی کتابوں میں آپ پڑھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تجوید کلاس. کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. قاری عبداللہ صاحب، آج کے سیگمنٹ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورۃ الحشر کی آخر کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ. سورہ حشر بڑی پیاری سورہ مبارکہ اور بالخصوص اس کی آخری 3 آیات بڑی ہی عمدہ ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں سورہ حشر کی اختتامی چند آیات کی تلاوت کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, कारी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत की तिलावत फरमाई है. बच्चों, जिन आयतों की तिलावत की गई है उन आयतों को हम स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं. सूरह हश्र की ये मुबारक आयत देखिए, बहुत सारे कलिमात हैं, उनमें बहुत सारे हुरूफ भी हैं, बहुत सारे एराब भी मौजूद हैं, ज़ेर ज़बर पेश जज़म, जिनकी मदद से हम इन आयतों को पढ़ते हैं. लेकिन मैं आज आपके सामने इल्म तजवीद का एक ऐसा उसूल और कायदा बयान करूँगा जिसका ताल्लुक़ एराब से नहीं है, हुरूफ से नहीं है, बल्कि इनके अलावा एक और चीज़ है, उससे है. वो क्या है? वो हैं रुमूज़े औक़ाफ़, कि कुरान मजीद के किस मकाम पर हमें ठहरना है, किस मकाम पर नहीं ठहरना तिलावत के दौरान, कहाँ ठहरना बेहतर है, कहाँ ना ठहरना बेहतर है. तो इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी अलामात होती हैं, जिन अलामात को रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं. क्या कहते हैं? यानी वक्फ़ की अलामात. वक्फ़ की अच्छा, वक्फ़ की जो अलामात होती हैं ना, ये मुख्तलिफ होती हैं, कुरान मजीद में लिखी भी होती हैं. लेकिन बच्चों याद रहे, ये वक्फ़ की अलामात सिर्फ हमारी यादाश्त के लिए, हमारी आसानी के लिए होती हैं. ये वक्फ़ की जो अलामात आपको मैं दिखाऊंगा, ये कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, कुरान मजीद की आयतों का हिस्सा नहीं है. ये अलग से सिर्फ अलामत के तौर पर, निशानी के तौर पर लगे होते हैं, लिखे होते हैं, ताकि तिलावत करने वाले को पता चल जाए कि मुझे यहाँ रुकना है या नहीं रुकना. वक्फ करने के लिए क्या डिसीजन लेना है, तो उसके लिए उलमा ने आसानी के लिए इन अलामात को लिखा है कुरान मजीद के नुस्खे में. ठीक है, इन अलामतों को क्या कहते हैं? रुमूज़े औक़ाफ़. अच्छा, ये बहुत सारे हैं, आज मैं सिर्फ 2 रुमूज़े औक़ाफ़ पर बात करूंगा. एक है मुख्तसर सा जीम और एक है छोटा सा त्वा. ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर नजर आएगा, ये देखें, यहां पर सूरह हश्र की आयत नंबर 22 में इस मकाम पर आप देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? छोटा सा जीम. अच्छा देखिए, बिल्कुल कुरान मजीद के हुरूफ कलिमात का जो साइज है उससे हटकर बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा लिखा है. ठीक है, तो इसका फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज भी बता रहा है कि कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, अलग से क्या है? अलामत है, ज़ेर ज़बर की तरह. ठीक है, इसी तरह यहां पर आप देखेंगे अल मुतकब्बिर के बाद छोटा सा क्या बना हुआ है? त्वा. ये भी एक अलामत है, कुरान मजीद का हर्फ नहीं है. तो ये जीम का मतलब क्या है, त्वा का मतलब क्या है, वो मैं आपके सामने बयान करता हूं. बच्चों, त्वा का मतलब क्या होता है? त्वा का मतलब होता है वक्फे मुतलक. वक्फे मुतलक की शॉर्ट फॉर्म क्या है? त्वा. त्वा मुतलक में भी क्या आता है? त्वा. तो ये त्वा किसकी शॉर्ट फॉर्म है? वक्फे मुतलक की. वक्फे मुतलक का मतलब बच्चों ये होता है कि इस मकाम पर ठहरना बेहतर है, इस मकाम पर वक्फ करना, तिलावत करते करते इस मकाम पर आकर रुक जाना, वक्फ करना, ये क्या है? बेहतर है. और जो जीम होता है, जीम जैसे कि यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, इस जीम का मतलब क्या है? वक्फे जायज. वक्फे जायज. मुख्तसर सा जो छोटा सा जीम है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? वक्फे जायज की. अच्छा, वक्फे जायज क्या होता है? वक्फे जायज का मतलब ये होता है कि यहां ठहरना बेहतर है, लेकिन वक्फ ना करना भी जायज होता है. यानी बेहतर यह है कि यहां रुक जाएं, वक्फ करें, फिर वक्फ करने के बाद आगे से पढ़ें. लेकिन अगर कोई इस जीम वाली अलामत को देखने के बावजूद वक्फ नहीं करता, रुकता नहीं है, बल्कि तिलावत को कंटिन्यू रखता है, यहां से पढ़ते हुए आए और यहां रुके नहीं, बल्कि यहां तक आ गए और यहां आकर मुकम्मल की, तब भी ये क्या है? जायज है. तो जीम का मतलब है वक्फे जायज, यानी कि ठहरना बेहतर है, ना भी ठहरे तो ना ठहरना, वक्फ ना करना भी क्या होता है? जायज होता है. अल्लाह पाक हमें इन अलामात को भी समझने की तौफीक अता फरमाए. कुरान मजीद से मुतालिक जितने भी उलूम हैं, अल्लाह पाक उनको हासिल करके कुरान मजीद की हकीकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए. किड्स मदीचल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं. आज देखते हैं कौन सी सूरत या कौन सी आयत है जिसकी फजीलत हमने जाननी है. सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल. सूरत और आयात के फ़ज़ाइल. कुरान मेरा नूर वाली किताब. जी, सूरत और आयात के फ़ज़ाइल. बच्चों, आज मैं आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 156
کی فضیلت بیان کروں گا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، جس میں بہت سارے شرعی احکامات بھی بیان کیے گئے، اور سورہ بقرہ وہ مبارک سورت ہے جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے، 3 پاروں میں یہ موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن بالخصوص آج ہم سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت مبارکہ کی جز کی فضیلت جانیں گے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 156۔ اور اس آیت مبارکہ کا جز کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بچوں، اس آیت مبارکہ کی کیا فضیلت ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے، یعنی اس مصیبت کو یاد کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز یعنی لمبا ہو گیا ہو، یعنی اگرچہ وہ مصیبت بہت پہلے آئی تھی، تو اللہ پاک اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ یعنی اس حدیث پاک کا اب مطلب اور خلاصہ یہ بنے گا، مثال کے طور پر کسی شخص پر 2 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، کوئی تکلیف آئی تھی، اس وقت اس نے یہ پڑھا تھا، تو اس مصیبت کے اترنے اور اس آیت مبارکہ کے پڑھنے پر اس مسلمان کو کیا ملا تھا؟ ثواب ملا تھا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اب 1 یا 2 سال کے بعد اس کو وہی مصیبت دوبارہ یاد آ گئی کہ مجھ پر یہ تکلیف آئی تھی، اور جیسے ہی اس کو وہ پرانی مصیبت یاد آئی اس نے دوبارہ یہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق اس مسلمان کو یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے اسی طرح ثواب ملے گا گویا کہ ابھی مصیبت اتری ہے اور ابھی اس نے یہ کلمات پڑھے ہیں اور اللہ پاک اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا انداز بھی ہے، ہمیں اس کو اپنانا بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی غم کی خبر سنیں، کوئی بھی تکلیف والا معاملہ ہو، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ساتھ میں صبر بھی کرنا چاہیے، بے صبری والے کلمات کہنے نہیں چاہیے، نہ شکری کرنی چاہیے، نہ بے صبری کرنی چاہیے۔ نعمت ملے، خوشی ملے تو شکر کرنا چاہیے، اور غم یا تکلیف یا آزمائش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، تو آپ علیہ السلام نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ یعنی یا رسول اللہ چراغ بجھ گیا ہے، بظاہر تو یہ بہت معمولی سا کام ہے کہ کسی کا چراغ بجھ جائے، لائٹ آف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہوتا۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو، مسلمان کو تکلیف دے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر یعنی ثواب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں سے بچائے اور نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی کوئی آزمائش تکلیف آئے تو ہم نے بچوں کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج ہم اس سیگمنٹ میں جودی پہاڑ کے بارے میں سنیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہ وہی مبارک پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ پیارے بچوں، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفانی موجوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ وہ کشتی خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبے کا طواف بھی کیا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ
पहाड़ पर ठहर गई। जूदी पहाड़ इराक के एक शहर जजीरा में वाक़ है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक ने हर पहाड़ की तरफ ये वही फरमाई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती किसी एक पहाड़ पर ठहरेगी, तो तमाम पहाड़ों ने तकब्बुर किया, लेकिन जूदी पहाड़ ने तकब्बुर नहीं किया बल्कि आजिज़ी का इजहार किया। तो अल्लाह पाक ने जूदी पहाड़ को ये शर्फ अता फरमाया और किश्ती इसी पहाड़ पर ठहरी। प्यारे बच्चों, एक और रिवायत में आता है कि काफी दिनों तक इस किश्ती की लकड़ियां और तख्ते जूदी पहाड़ पर मौजूद रहे, यहाँ तक के बाद में आने वाली उम्मतों के बाद लोगों ने इस किश्ती के तख्तों को जूदी पहाड़ पर देखा था। मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख यानी आशूरे के दिन ये किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। चुनाचा इस तारीख को किश्ती की तमाम मखलूक यानी इंसान, जानवर और परिंदे वगैरह तमाम ही ने शुक्राने का रोजा रखा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती से उतरकर पहली जो बस्ती बसाई उसका नाम समानीन रखा। अरबी में समानीन के माना 80 होते हैं। चूँकि कश्ती में 80 लोग थे, इस वजह से इस गांव का नाम समानीन रख दिया गया। जूदी पहाड़ का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा कंजुल इरफान। और वो कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और फरमा दिया गया जालिमों के लिए दूरी है। तो बच्चों, आज हमने जूदी पहाड़ के बारे में सुना। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज के सेगमेंट में हमने एक पहाड़ के बारे में जाना जो बड़ा तारीखी पहाड़ है, जिसको कहा जाता है जूदी पहाड़। ये वो पहाड़ है कि जिसके करीब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती आकर रुकी थी। ठीक है, तो इसका हम रिवायात में, हदीस वगैरह में भी बयान सुनते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी निशानियों में, अपनी कुदरत के मज़ाहिर में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला की पहचान और मार्फत मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अल्लाह पाक हमें अपनी कुदरत के अजायबात में गौर व फिक्र करने और उससे नसीहत हासिल करने और अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मत चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ। और आज बच्चों क्या होगा, आज एराब पहचानने का मरहला होगा। दोनों तरफ से एक एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, वो वहां मौजूद खड़े होकर एराब को पहचानने की कोशिश करेंगे। एराब पहचानने का अंदाज ये होगा, यहाँ स्क्रीन पर आपको कुरान मजीद के मुख्तलिफ कलिमात दिखाए जाएंगे। ठीक है, उन पर ज़ेर ज़बर एराब सब लगे होंगे। कोई एक हर्फ ऐसा होगा जिसमें एराब आपको नज़र नहीं आएगा। मैं उस पूरे कलमे को, उस पूरे जुमले को या पूरे हर्फ को पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और मेरी आवाज़ सुनकर पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस हर्फ पर कौन सा एराब था जो मैंने पढ़ा लेकिन यहाँ नज़र नहीं आया। बस आपको बताने के फुला हर्फ पर वो एराब है, रा पर ज़बर है, मीम पर पेश है। बताने का तरीका ये होगा कि आपके सामने देखें रेड कलर की एक बास्केट मौजूद है, इसमें ज़ेर ज़बर पेश के सैंपल्स मौजूद हैं। ठीक है, दो बच्चे सिलेक्ट होंगे, 1 बाय 1 उनसे मैं एराब पूछूंगा। वो क्या करेंगे, साल के तौर पर उनको नज़र आया कि मीम पर पेश होना चाहिए, जो मैंने पढ़ा है यहाँ पर नज़र नहीं आया, वो वहाँ से मीम का सैंपल उठाएंगे और माइक पर हमें सैंपल दिखाकर बताएंगे कि मीम पर पेश है, मीम पर पेश है, रा पर ज़बर है, सही है, नून के नीचे ज़ेर है, मिसाल के तौर पर। तो इस तरह वो बताते जाएंगे, हम चेक करते जाएंगे, जिसका जवाब दुरुस्त होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह। तो सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, एराब पहचान कर लगाएं। कौन पहचानेगा एराब? दाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? सबसे पहले माशाअल्लाह इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। पहले नंबर पर माइक देंगे इनको और नाम बताएंगे। खिदाश। बड़ा यूनिक नाम है, खिदाश जी। तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, आप एराब पहचान लेंगे जी। खिदाश साहब, माशाअल्लाह खिदाश हमारे यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं। इनके मुकाबले में यहाँ से कौन आना चाहेगा? अरे 3 हाथ खड़े हो गए। दूसरे नंबर पर जो मौजूद है, नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान करेंगे खिदाश साहब से मुकाबला। जी। जीतेगा कौन? जिसके नसीब में होगा। जिसके नसीब में होगा वो जीतेगा। तो बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि दोनों ही जीतेंगे। जी सुफियान, सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा एराब। स्क्रीन पर देखेंगे, कलमा शो किया जा रहा है आपके लिए। तकफुरूना, तकफुरूना,
नून पर ज़बर है। नून पर ज़बर है, दिखाएंगे जनाब नून पर ज़बर है कि नहीं। बिल्कुल नून पर ज़बर है। सुफियान का पहला जवाब जी। खिदाश देखेंगे, कफूरुन, शुरू में काफ आ रहा है, इस पर कौन सा इराब है? कफूरुन जी। ज़बर है। पूरा जुमला बताएंगे। काफ पर ज़बर है। काफ पर ज़बर है, दिखाएंगे जनाब। काफ पर ज़बर आ गया, इनका जवाब भी माशाअल्लाह, पहले जवाब दुरुस्त जी। सुफियान दोबारा देखेंगे, इलैही, बहुत आसान है। इलैही, हा के नीचे क्या है? हा के नीचे ज़ेर है। हा के नीचे जेर है, दिखाएंगे। हा के नीचे बिल्कुल जेर आ चुकी है, इनका जवाब भी खिदाश, थोड़ा बड़ा कलिमा है, देखेंगे। इलस्समाई, आखिर में हमजा है, हमजा के ऊपर नीचे क्या है? इलस्समाई, हमजा के नीचे ज़ेर है। देखेंगे जनाब, हमजा के नीचे जेर आ चुकी है, इनका जवाब भी दुरुस्त कर रहे हैं। आखिरी एराब पूछूंगा, देखते हैं अब क्या होता है। दोनों ही आगे बढ़ते हैं या कोई एक पीछे रह जाता है। लास्ट एराब सुफियान देखेंगे स्क्रीन पर। उन्जिला, उन्जिला, लाम पर ज़बर होना चाहिए। पक्की बात है जी। दिखाएंगे। लाम के ऊपर ज़बर आ चुका है, सुफियान का तीसरा जवाब। ये तो आगे बढ़ गए। खिदाश आखिरी एराब देखेंगे जरा। खालिदूना, खालिदूना, अब खुद पहचानना है कौन सा वो हर्फ है जिसके ऊपर नीचे एराब मौजूद नहीं है, मैंने पढ़ दिया है। दोबारा देखेंगे, खालिदूना, लाम के नीचे ज़ेर है। लाम के नीचे जेर होना तो सही चाहिए। लाम के नीचे जेर आ गया, इनका जवाब भी तो दोनों के नसीब में जीतना था, दोनों जीत गए। अल्लाह पाक इनको और हम सबको कुरान मजीद की बरकत नसीब फरमाए। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के अहकामात को समझने, इसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।